It is indeed a joyful day, a marvelous day in the history of St. Joseph Senior Secondary School, Banda. It is because of the presence of our four resource persons. Father Johnson Kalanaikal is the principal of Christ College, Bhopal. He is a well-known educationist and he is well qualified with MA in Hindi literature, MA in political science, MA and PhD. He has published more than 10 research papers and UGC care journals, presented papers in national and international seminars and conferences. He has 20 years of teaching experience in Christ College, Bhopal itself. That is a big achievement. Served as an education counselor of the CMI St. Paul's Province, Bhopal, by MP. And he is also well versed in media communication as secretary. So, good morning. So it's my privilege to be here with this community, and especially with Father Bitu, because when Father Bitu asked me whether you can come over here, then I was waiting for his invitation, because we are very good friends from the at least what you can say 10 speaks about education, or the education as well as the teachers. That's the first 45 minutes that will be there. After the 45 minutes, Dr. Pallavi will speak about under the banner of this NEP as well as NCF, what is actually a teacher, the quality of teacher as well as how to manage the classroom, etc. etc. She will speak. Then afternoon, Jaya will take you to Netherlands. She speaks about there are different types of lesson plans, methods. You might have the repertory method and the 5E method and the Panjabi, like there are different types of methods out there. She will introduce you to about them. The last session Dr. Divadar will take is one of our leading professors in the high school. So he will speak about am I right? Yes, no doubt about it. It is not by chance, I will say that this is not a by chance you became a guru, not because of somebody else or your father, parents, relatives asked that you go and become teacher. No, it's a providence. It's a God's selection. God selected you to become a guru or to continue that discipleship. That's why you are here and giving and conveying your message to the people, and not only the people of the students of the Banda, but the neighboring country, or you can say the districts of the place. So we are called Guru. Guru has a beautiful meaning in Indian tradition. Guru has a beautiful meaning. That is the first of all way I know that what's the word literally meaning of Guru? Guru? What's that? That's I written. That's why definitely I am asking literally meaning, etymological meaning. Gu, anybody is in Sanskrit? Sanskrit? No. Guru. That's the two words. Guru. What's the meaning of Gu? Gu means darkness. What's that? Darkness. Gu means darkness. Ru means light, divine light. Guru. That is the word meaning. What's actually what Guru is doing? 20-25 years when he became here in, as far as my memories is correct, when he came to become a priest here in Sagar Diocese, I think I invited him. बाद में पता चला कि वो जो ऊपर चढ़ गया था वो बहरा था। उसने कोई भी नेगेटिव बात किसी की सुनी ही नहीं। ऐसे ही थॉमस एडिसन की भी एक बहुत फेमस ऐसी ही स्टोरी है कि जब वो छोटे थे तो उनके स्कूल से लेटर लिख के भेज दिया गया था मदर को कि भैया ये बच्चा बहुत नालायक है, हम उसको पढ़ा नहीं सकते, पढ़ाने के लायक नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जब वो घर गया वो लेटर मम्मी को दिया तो मम्मी ने बोला कुछ नहीं, स्कूल से लेटर आया है कि आपका बच्चा इतना ब्रिलियंट है कि हम उसको पढ़ाने के लायक नहीं हैं। शी चेंज द वर्ड्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप उसको घर पे ही पढ़ाइए।
अब जैसे जैसे समय बीता, एक टाइम आया, थॉमस एडिसन जो है वो बड़े हो गए, और टाइम आया जब इनकी मदर की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो उनका जब सामान टटोला उन्होंने, तो उसमें से वही चिट्ठी निकल के आई जो बचपन में वो स्कूल टीचर ने उनको लिखी थी। और जब उन्होंने खोला तो उसमें यही लिखा हुआ था कि आपका बेटा नालायक है, किसी काम का नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है, हम उसको नहीं पढ़ा पाएंगे। सो दीज आर द मैजिक ऑफ वर्ड्स। किसने सोचा था इतने साल बाद वो थॉमस एडिसन ऐसे बन पाएंगे, इतने मशहूर बन पाएंगे, उनकी रिसर्चेस इतनी काम आएंगी, है ना। तो दीज आर द पावर्स ऑफ वर्ड्स। मैं बता रही हूँ, पावर ऑफ वर्ड पे मेरा फोकस है यहाँ पर। अच्छा बोलोगे, अच्छा बोलोगे तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो जाएगा बच्चे के साथ, लेकिन बुरा बोलोगे तो गारंटी है कि बुरा होगा, क्योंकि कुछ और नहीं तो उसका मोरल डाउन हो जाएगा, इज़न्ट इट। और ये सिर्फ बच्चे के साथ नहीं, किसी के साथ भी है। सो पहली चीज़ हमें, यू हैव टू स्पीक पॉजिटिव, यू हैव टू स्पीक गुड। नहीं होगा, और हम किसको ब्लेम करते हैं? बच्चे को ही इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर? शी शुड मोटिवेट। जब वो क्लास में आए, अच्छा एक और मैं आपको छोटा एग्जांपल आप ही की क्लास में से देती हूँ। आपने कई बार क्लास में कहा होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये एग्जाम में आ सकता है, और उसके बाद नोट किया आपने, बच्चों ने फटाफट कॉपीज निकाली, और हर साल हर महीने पास होने के बाद भी और फेल होने के बाद, है ना। सिर्फ मोटिवेशन फेल होने के बाद नहीं देना है, क्लास पे रोज देना है, सो दैट दे कैन लर्न एवरी डे, मूविंग अहेड। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज नॉलेज बट विद विजडम। ज्ञान सबके पास है, हर टीचर नॉलेज देता है, लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट टू टीच कि उस नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, कब करें, है ना। एक छोटी सी स्टोरी है इससे रिलेटेड। एक बार 5 गाँव में 5 दोस्त रहते थे, उनमें से जो 4 हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है, और क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। अब इसमें कई सिफारिशें दी, आप कुछ पॉइंट्स को जानते हैं कि ये जो पॉलिसी है वो क्या रिकमेंडेशंस टीचर्स को देती है? डू यू नो एनीवन? ये पॉलिसी क्या कहना चाहती है? कोई एक पॉइंट आपको पता हो तो आप बताइए। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ओके। और कुछ होलिस्टिक डेवलपमेंट। मैम बहुत अच्छा पॉइंट बताया, हर जगह उन्होंने होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है। एनी अदर पॉइंट विच यू नो? Am I audible till last? Okay. So I'm going to show some recommendations of this policy. I am going to focus on the 4th one. ये बोलता है, ये recommendation क्या बोलती है कि रटने को की बजाय instead of rote learning, emphasis on conceptual understanding. What does this mean? इसका मतलब क्या है? हाँ, कॉन्सेप्ट की समझ का को डेवलप करना। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि रटवाइए मत, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करवाइए, और साथ में सीखने के लिए जो स्किल्स जरूरी है वो बच्चों में डेवलप कर दीजिए। इससे वो 24/7 लर्नर्स बन जाएंगे, मतलब कि आपकी मदद के बिना भी वो सीख पाएंगे। क्योंकि देखा होगा ना, बच्चे बाहर भी सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ना तो टीचर की जरूरत नहीं होती ना उनको। तो ये पॉलिसी बोलती है कि उनके अंदर कुछ क्षमताओं का विकास करिए, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग,
आप लीनियरली जा रहे हो, यू हैव डिसाइडेड कि फाइनली और पॉइंट ये सिर्फ एक्सीडेंटल हो। देयर इज साइंस में है कि मैंने अपने मुस्लिम फ्रेंड से पूछा तो पहले वो अक्सर मैंने बोला बट क्यों करें, यस ये है। सो व्हाई क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑल अबाउट व्हाई। आपने क्रिटिकल थिंकिंग 4C 1P मैम के लेक्चर में क्रिटिकल थिंकिंग नाउ क्रिटिकल थिंकिंग इज सो क्रिटिकल वी आर कंफ्यूज। तो आपको इतना याद रखना है व्हाई, ठीक है। इकोनॉमिक्स कॉमर्स टीचर फाइनेंशियल ईयर starts from April 1 till 31st March. Why not January 1st? Why? This is critical thinking because this is based on agriculture psychology. Okay? हमारे यहाँ डाइवर्स है पूरा कल्चर, तो हमारा एग्रीकल्चर साइकिल पर पूरा फाइनेंस ये सब पूरा चल रहा है, इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31st मार्च। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आधा विषयों में भूल से बोलते हैं कि सर आईसीटी का लेकिन आईसीटी का बिल्कुल नहीं, तो सबसे वीक उसका। बट आई विल डिस्कस फ्यू ऐप्स एंड फ्यू प्लेटफॉर्म्स विद यू जो आपके लिए बड़े आसान होंगे और क्रिएट करना आपको कुछ मैं बताऊँगा उसके अंदर। आई विल प्रोवाइड वन शीट टू अ ग्रुप ऑफ 5 टीचर्स एट लीस्ट, और मैम ने आपको दिखाया कंसेप्ट मैप। व्हाट इज दैट कंसेप्ट मैप? वी हैव वन सेंट्रल थीम और उस सेंट्रल थीम के देयर आर सम ब्रांचेस we can have some branches also and we can have some branches also। तो मैं आपको कुछ 6 शीट्स दूंगा, 6 ग्रुप, वो शीट्स के लिए मैं आपको 5 मिनट दूंगा। आपका रीजन व्हाई भोपाल इज द कैपिटल, आस्क क्वेश्चंस व्हाई नॉट इंदौर, व्हाई नॉट ग्वालियर, ये है क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस। व्हाई भोपाल इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, व्हाई। एंड आप छोड़ दो बच्चे एक दिन के लिए, आपको क्या लगता है मनी निकाल पाएगा सर? निकाल लेंगे। मैं हर सेशन में बोलता हूँ, मेरे साथ वाले लोग तो सुन के शायद पढ़ते होंगे कि आजकल गुरु गोविंद लोग खड़े नहीं हैं, आजकल गुरु गूगल लोग खड़े। गोविंद की जगह गूगल आएगा, वो सीधे डालेगा भाई भोपाल से कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश और नेक्स्ट डे आपको आंसर डालेगा। तो वाई ऑलवेज आस्क वाई। मेटल्स आर कनेक्टेड, या आप कुछ भी बोल सकते हो। अब वो मैम को बोला कि म्यूजिक को कैसे हम साइंस में करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली एमएससी केमिस्ट्री किया हुआ है, तो मैंने जब केमिस्ट्री करता था तो मुझे मेरे टीचर से कहना नाम अगर सी पर्सनल आपने किसने पढ़ा होगा तो गाना बनाओ पीरियडिक टेबल लिखो, आप उससे आपके लिए पढ़ो, मैं पूरा ये कॉमिक नंबर के साथ वो आज। तो ये आपको ऐसे नहीं करना है, रखवाना नहीं ये कैसे बना हुआ इस नाम सो क्रिटिकल थिंकिंग तो पहला चीज़ है दैट इज क्यूरियोसिटी पैदा करिए। क्यूरियोसिटी कैसे पैदा करिए? साइंस के अंदर कंसेप्ट मैप क्या होगा? इसमें एक सेंट्रल थीम होगी जो मैंने आपको दे दी है, अब उसकी ब्रांचेस निकालिए। जैसे आपने देखिए एक एफडीपी मिला होगा, इसको मिला एफडीपी। तो आज की एफडीपी की बात की ब्रांचेस ऐसे सारे ब्रांचेस
सेंट्रल थीम के पास सारे रास्ते